ऐसा लिख लिया करना कि सर ने इसकी चर्चा इस डेट की क्लास में की थी, ऐसा कहीं लिखने से आपको याद रखने में आसानी होगी। तो आज की डेट लिख के उसके आगे ये भी जो भी नोट करना है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट सिंपल का कॉम्बिनेशन होता है ग्रामर के अनुसार। Past perfect is always followed by past simple according to grammar. So now, anybody tell me, in future perfect दूसरा टेंस कौन सा होगा? What should be the second tense? फ्यूचर सर सिंपल। फ्यूचर सिंपल। सर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ सेकंड शुड बी सिंपल पास्ट। Now only Poonam is has to answer. Sarika, I will give you one more chance, and Aparna, I will give you. सर फ्यूचर परफेक्ट के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस। Sarika, if you want to change your answer. Aparna, if you No, want to sir, I change don't your answer. want to change my answer. Actually, you were saying something. I will go with past simple with future perfect tense. Okay, nice. ये गो का अच्छा प्रयोग करने लगे आप. Sir, Good. I wanna change. I wanna change. Sir, maybe present simple is followed by the future perfect. Absolutely correct. इसको इस तरह से जहन में बैठा सकते हैं आप दोस्तों कि प्रेजेंट और फ्यूचर आर मैरिड. थोड़ी देर पहले ही इफ की चर्चा हुई थी और सारिका ने पूरा नियम बताया था. वही चीज है. रियली ग्रामर इज वेरी इजी. आई एम टेलिंग यू. आई डोंट नो हु फ्राइटेंड यू. एक आध नियम बन जाता तो वो हमेशा चलता है. One rule is regularly followed. It goes on and on and on. तो फ्यूचर की शादी प्रेजेंट के साथ हुई है और ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों कि इसमें ऐसा आवश्यक नहीं. आई एम टेलिंग यू वन मोर थिंग कि फ्यूचर में दूसरा कोई सेंटेंस आए ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमें सावधानी रखना है. अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसको कॉम्पिटिटिव के लेवल पर तैयारी करवा रहे हो, तो उसको ये चीज़ जरूर बताएं. तो हम जानबूझ के पहला सेंटेंस ऐसा दे रहे हैं जो कि उस बात को बयां करेगा, और वो भी बिल्कुल राधा छाप दे रहे हैं, और बिल्कुल पिछले सेंटेंस की आपको याद ताजा हो जाएगी क्योंकि वो वैसे ही है, मिलता जुलता. लिखिएगा, आपके स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन छूट चुकेगी. आपके स्टेशन पहुंचने से पूर्व ही ट्रेन छूट चुकेगी. पूर्व लिखते ना बने तो पहले ही लिख लेना. वा में बड़े की मात्रा, वा में राके रेफ पूर्व, एक ही बात है. एक बार सारिका बोल देगी तो कंफर्म हो जाएगा. हिंदी. जी, आपके स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन छूट चुकेगी. करेक्ट. I would like to give this sentence to Poonam. Poonam tried to make with the proper process. Whether it goes wrong, don't worry. Here we Yes, go. sir. This sentence having two parts. First part is simple present tense, and second part is future perfect tense.
Carry on, please. So firstly, I will take the simple present tense, and this is an affirmative sentence. Good. Um, Firstly, I will take simple present tense. So, um, firstly, I will take the um, um, preposition before conjunction. Good. Before, later on, I will take the subject you. Uh, Later on, I will take the first form of the verb reach. So the first simple present before you reach. Uh, Later on, I will take the object or noun, uh, the station. Before you reach the station, um, Done. no, sir. I will start with the subject. You reach. So, firstly, I will take the future perfect tense and the subject. So, firstly, I will take the subject, the train. That the train will. Okay. No, sir. This. Sir, um, sir, I was wrong. This sentence. Sir, this sentence having two parts: simple past tense and past perfect tense. See, ladies, do not hesitate because sentence making is never important in this class. Yes, While sir. you are sentence making, you are speaking English. That's all. And one again, after a long time, I am telling you, the mistakes are respected in this class. सर So, दस सेंटेंसेस आपके स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन छूट चुकी थी सो छूट चुकेगी. चुकेगी. चुकेगी ओके हाँ. सर आई हैव राइट Future चुकी perfect. थी चुकेगी Future perfect. ओके ओके Actually, सर that's why I said Sarika to repeat. That's ओके why. सर आई हैड I was wrong actually Written I wrong in. Yeah. wrong yes so this sentence having two parts first part is simple Poonam, present this tense. sentence is having two parts. This sentence is having two parts. First part is Is simple present tense, and the second part is future perfect tense. And this is an affirmative sentence. Uh, First, I will take the second part of the sentence. So, I will start with the subject, and the subject is the train. बिल्कुल सही पूनम. Now you are going well. सबसे पहले तो इंटरचेंज होता है अर्थात बाद वाला सेंटेंस पहले और पहले वाला बाद. Okay. So the first part is the train subject. Later on, I will take the helping verb will have. Um, Later on, I will take the third form of the verb left.
Come again. Left, L-E-F-T. Left. The train will, or departure. I can take another word for it, departure. The train will have left. Then I will take the conjunction. I just switched on my CC to check the spelling of departure. Okay. Departure spelling. Departure. D-E-P-A-R-T-U-R-E-D. Departure. I have checked by CC. Okay. Later on, I will take the conjunction before left, before. So second part is simple present, but it is object. पहले हम एक चीज पर चर्चा करते हैं. यू आर गुड गोइंग. तो अब हम ये सेंटेंस किसी और को नहीं देंगे. यहाँ पे इसको ध्यान से देखो. पूर्ण ट्रेन कौन सा काम करेगी? छूटने का. यहाँ ट्रेन कौन सा काम कर रही है? स्पीक अप प्लीज. The train will have left or departure. हिंदी में बताओ, ट्रेन कौन सा कार्य कर रही है? सर छूटने का कार्य कर रही है. नहीं. जाने अगर का. कोई और बताओ हिंदी में एक शब्द में. स्टेशन को छोड़ने का. छोड़ने का. इतने सेंटेंस का अर्थ हो गया स्टेशन, सॉरी, ट्रेन छोड़ चुकेगी. लीव यानी होता है छोड़ना, छूटना नहीं होता है. तो अब यहाँ पे एक सवाल आता है. ये बहुत शुरुआत में ये गलतियां होती हैं, बारीक है, कि ट्रेन किसको छोड़ चुकेगी. तो कई बार हिंदी बात में ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन इंग्लिश में हमें रखना होता है. Okay, sir. Okay, sir. So, noun or object is the station. Later on, I will take the conjunction before. Later on, I will take the subject you. Later on, I will take the first form of the verb reach. Later on, I will take the object the station. हम यहाँ थोड़ा सा ब्यूटीफाई करते हैं फैशनेबल तरीके से. कोई बताएगा? हम एक एक्स्ट्रा प्रपोजिशन लगाते हैं. ओवर देयर. Lastly, इसमें हमने बाकी लोगों का सहयोग इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं थी. Sarika will speak English and Hindi. The train will have left the station before you reach over there. हिंदी. जी, आपके स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन छूट चुकेगी. सॉरी. The train will have departed the station before you reach over there. आपके स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन छूट चुकेगी. रेणु भाभी. The train will have left the station before you reach over there. आपके स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन छूट चुकेगी.
The train will have left the station before you reach over there. आपके स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन छूट चुकेगी. Sir, I have a doubt. Please. Sir, in this sentence, there are two helping verbs, na? Will or have. कि both are together. टू है हेल्पिंग ना? वर्ब. चलो, तुमने बात शुरू की है तो अब दूर तक जाएगी. हम तुमसे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चनिंग, तुम आगे बढ़ा. Will you have arranged your house before the guests come? Yes, sir, definitely. I will have arranged my house before the guest come. अब अगर किसी ने नोटिस किया हो तो हमने थर्ड फॉर्म का उच्चारण बहुत ज्यादा ड लगा के किया नहीं था. अगर किसी ने ध्यान दिया, हो सकता है गूगल ने भी लर्न लिया, लेकिन इस स्टेज पे आके वो अंडरस्टूड हो जाता है कि इफ पर्सन इज यूजिंग विल हैव, सो ही मस्ट बी यूजिंग थर्ड फॉर्म. लेकिन आगे की स्टेज में डा लगा के थर्ड फॉर्म बोलना अच्छा नहीं माना जाता. उसमें हल्का सा टा का उच्चारण करने की कोशिश कीजिए. टीवी प्रोग्राम्स में देखिए, ये लोग बहुत खूबसूरती से उसको बोल जाते हैं और उसमें डा कहीं सुनाई नहीं देता है. आई रिपीट माई क्वेश्चन. Sarika, will you have arranged the house before the guests come? Yes, sir. I will arrange the house before the guest come. तुमने have नहीं लगाया? Yes, sir. I will arrange the house before the guest come. I will have. Sorry. I will have. हाँ जी, हाँ जी. Yes, sir. I will have arranged the house before the guest come. अब बिना टेंशन लिए सेंटेंस को ध्यान से देखो. मैंने जो नियम शुरू में बताया था, जो तुम लोगों को, अधिकतर लोगों को हजम नहीं होता, कि सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठा के सामने रख देते हैं. जब हम ऐसा बोलते हैं तो 99% बच्चों के मन में आता है कि गुरुजी सीधे सीधे क्यों नहीं बता रहे कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के सामने रख दे. ऐसा अब देखो जाके यहाँ पे वो लागू होता है बड़ी खूबसूरती से. क्योंकि अगर हम सहायक क्रिया को उठा के सामने रखने की बात करेंगे तो फिर हमें दोनों रखना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स. तो अब हम सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठा के सब्जेक्ट के सामने रख देते हैं. अभी तो ये अंगड़ाई है दोस्तों. अभी आगे एक और टेंस आएगा जिसमें 3 सहायक क्रियाएं होती हैं, लेकिन वो नियम जहां की तहां रहेगा, अडिग रहेगा, अंगद के पैर के समान. Now make any question. बना लिया होगा. I hope you must have made any sentence in your mind, Sarika. Ask who somebody. जी. Aparna Di, will you have performed the havan before the aarti? Yes. एक मिनट रुकिए. दूसरे सेंटेंस में क्रिया रखने की सब लोग कोशिश कीजिएगा. प्रेजेंट सिंपल है ना. अच्छा, तो आरती के लिए भी परफॉर्म लगाएं कि डू लगाएं? यहाँ पे भी परफॉर्म लगा तो अच्छा लगेगा. जी. Aparna Di, will you have performed the havan before perform the aarti? Yes, Sarika. अब कौन बच्चा बताएगा कि सारिका ने एक नियम का उल्लंघन किया है? बिफोर क्या है बच्चे लोग? व्हाट इज बिफोर? कंजंक्शन सर. Conjunction. हाँ, और बिफोर के बाद तुम सीधे परफॉर्म रख रही हो ना. जी Before जी the जी. aarti. बिफोर यू परफॉर्म. या तो बिफोर के बाद
परफॉर्मिंग होगा, नाउन बनाना पड़ेगा हमें, लेकिन इस टेंस में परंपरागत रूप से सब्जेक्ट रखवाना सिखाते हैं, तो अपन वही फॉलो कर रहे हैं। सब्जेक्ट रखो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। जी सर। अपर्णा दी, will you have performed the havan before you perform the आरती? और इसके पहले आरती परफॉर्म नहीं आएगा, बिफोर यू, नहीं, बिफोर योर आरती परफॉर्म्ड नहीं आएगा। अच्छा, बिल्कुल प्रेजेंट सिंपल का पालन किया है सारिका ने। हाँ हाँ, यू परफॉर्म द आरती, करेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। yes Sarika, I will have performed havan before the नहीं, I will have performed havan before before perform आरती, नहीं, before आरती perform, before my आरती, before आरती सब्जेक्ट नहीं है, वो कुछ परफॉर्म नहीं कर सकती। before सब्जेक्ट my आरती, हिंदी कवर नॉट कर रहे हैं। Do not go with the word to word translation. Okay. Poonam, wait, no problem. Poonam, Sarika will not repeat. Can you answer? Yes, sir. Aparna will have performed the havan. Perform. आई से आंसर दे सकते हो पूनम, आई। Okay. I will have performed the havan before the aarti performs. रेनू हाजिर हो? सर I Before will. I do the aarti. I perform the aarti. ओके, इट इज डन। सारिका, कंप्लीट द प्रोसेस। जी। भाभी, आप आरती करने के पहले हवन कर चुकी होंगी। हाँ सारिका, मैं आरती करने के पहले हवन कर चुकी हूँ। can I ask to Renu Bhabhi? I'm going to ask. No, now Poonam will ask somebody. Okay. It's the same question or another question? Another question. Another question. Okay. Aparna, will you have read the interactive and idioms before the class start? Come again. Will you have के बाद उसने read and Will you have read? Sorry, read. sorry. Sir, third form of the read is read. Read, read, read. Read. Will you have read all the idioms and interactive sentences before the class starts? Before the class start. Yes. Or before you join the class? Before you join Come the again, class. last sentence, Poonam, please. Sir, will you have read all the interactive and idioms before you join the class? Today's class. Before you join the today's class. Tomorrow. अच्छा. Yes, Will you have Poonam, I will have read all the interactive and idioms before I join the class.
ओके रेनू भाभी, हाँ हाँ, कंप्लीट द प्रोसेस पूनम। क्वेश्चन पूछने की पड़ी। अपर्णा, क्या आज की क्लास ज्वाइन करने के पहले क्या आपने सारे इडियम्स और इंटरेक्टिव सेंटेंसेस पढ़ लिए होंगे, पढ़ चुके होंगे? टुमारो, पढ़ चुके होंगे टुमारो यू विल हैव टू होंगे। टेक टुमारो। हाँ हाँ सारिका, कल की क्लास अटेंड करने के पहले नहीं, पूनम, आज की क्लास पूनम, पूनम asked पूनम। you, not Sarika. अच्छा हाँ पूनम, क्लास अटेंड करने के पहले मैं इडियम और इंटरेक्टिव सेंटेंसेस पढ़ चुकूंगी। मैं इंटरेक्टिव और इडियम सेंटेंसेस पढ़ चुकूंगी। ओके भाभी, हैव यू विल यू हैव क्लीन्ड योर होम बिफोर बिफोर दिस दिवाली, दिस नवरात्रि? Yes, I will have cleaned my house before this Navratra. क्या आप इस बिफोर के नवरात्रि के बाद, बिफोर के बाद पूरा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस रखने की कोशिश करेंगे। ओके बिफोर दिस नवरात्रि कम, नहीं Fes- नहीं, अब यहाँ पे आएगा मजा। Festival. इस नाम है त्योहार के पहले। प्रेजेंट सिंपल, लेकिन है नहीं इतना सिंपल। बिफोर दिस दिवाली कम, नहीं आएगा। बिफोर दिस दिवाली सेलिब्रेशन, नहीं सेलिब्रेट, नहीं आएगा। तुमने सिंगुलर नंबर रख के गलती कर दी। You have made mistake by putting singular number. देखो सारिका, तुम्हें 20 का दंड मिलेगा। धीरे धीरे तुम बता रही हो। ओके विल भाभी, विल यू हैव cleaned your home before 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 Diwali celebrate, नहीं before Diwali celebrate, before your Diwali celebrate, नहीं बन रहा। चलो लास्ट का बस कौन सुधारेगा? Sir, can I? Before this Navratri comes. बिफोर दिवाली, दिवाली। हाँ जी। Okay. हाँ। Before this Diwali comes. दिस भी लगाने की जरूरत नहीं, बिफोर दिवाली नहीं, का। before Diwali comes. रेनू भाभी, will you have cleaned your home before Diwali comes? Yes, I will have cleaned my. I will have cleaned my house before before Diwali comes. क्या आप इस दिवाली के पहले अपना घर साफ कर चुकेंगी? नहीं, दिवाली के आने के पहले यह अपना घर साफ कर चुकोगी? हाँ, मैं ये दिवाली आने से पहले अपना घर साफ कर चुकी होंगी।
Okay. Sarika, will you have completed your household chores before I reach over there? Yeah, sure, definitely, Bhabhi. I will have completed my all household chores before you reach at my place. Okay. क्या मेरे आने से पहले आप घर का पूरा काम कर चुकी होंगी? हाँ जी, बिल्कुल, आपके आने से पहले मैं अपने घर के सारे काम कर चुकी होंगी। दोस्तों, आई एम कंक्लूडिंग द क्लास टुडे। Please, anybody inform Ritu. Today I am giving you the next tense. This is important tense. I will come back to the rest tenses, but tomorrow I am going to give you the next tense. So Aparna, you can call her and inform her if she can attend tomorrow's class. It will be good for her. Generally, I do not inform this thing, but because the next tense is important. So inform her. Okay, guys, I'm taking your leave. Sir, Hmm. sir, I made one sentence. So should I say, please? Please. Okay. The reputation of India will have completely changed upcoming years if we support the Modi ji like this. यहाँ if लगाना सही रहेगा? Actually, सारिका ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है. पैसिव वॉइस है. Am I audible? There is little network issue. Yes, sir. Your voice is chopping sometimes. But it is audible, yeah. So actually, this sentence will look good in passive voice, uh, but in some context, this sentence can be correct because change verb is having two meanings actually. स्वयं का बदलना भी और दूसरे को बदलना भी. तो in this context we can take this, we can accept it. लेकिन ये बनता पैसिव वॉइस में है, खूबसूरत होता है, मजा उसी में आता है और ये बड़े आसानी से बनता है. विल बी चेंज्ड ऐसे करके बनता है. विल हैव की जरूरत नहीं होती है, या विल हैव बीन चेंज्ड ऐसा फिर बनेगा वो. सारिका, यू आर म्यूट. जी. The reputation of India will have been changed. ऐसा? हाँ, ये पैसिव वॉइस है. और पैसिव वॉइस के नाम पे आमतौर पे हम हिंदी मीडियम के दिमाग में बाय भर दिया जाता है कि बाय लगाने से ही तो. ऐसा नहीं है, हम उसको हटा देंगे and you will be very happy to get this passive voice. Let the time come. अब पैसिव वॉइस में होता क्या है, तुमने जो सब्जेक्ट रखा है सारिका इस सेंटेंस में, तो वो सब्जेक्ट काम कर रहा है क्या, वो खुद काम कर रहा है क्या? अगर कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में कर्ता काम नहीं करता है तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है. इस अंतर को ऐसे बोलने से नहीं क्लियर होगा, अपन उसमें खेलेंगे, लंबी पारी खेलेंगे 15 days at least, it will be clear. Actually, as I said, this tense is not very useful tense for especially spoken English. That's why I have given you only one sentence today. I will give you one more sentence tomorrow, so that by tomorrow you can recall all this properly. And if you think, any one of you say or think that sir, give some more sentences, in that case I will give some more sentences. So I have 4 or 5 sentences, but
2 sentences are enough. So today we are, please. Sir, I want to ask one thing. Sir, ऐसा हुआ one time it happened with us when we are coming from Bangalore. So the sentences and it had happened to us कि before we reached the station, the train has left. हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी. तो सर वो तो जो चुकी थी वो भी पास्ट में हुआ ना, पर ये सर सच का सेंटेंस है. हम वहां पहुंचे, उस मतलब हमारे आंखों के सामने से ट्रेन चली गई थी. तो ये पास्ट परफेक्ट में हमने दिया था ना, ये दिया है ऐसे पिछले टेंस में दिया है. यू कैन गो एंड सी. हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, छूट चुकी थी. हाँ, पास्ट परफेक्ट का फर्स्ट. वो प्रैक्टिकल थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, लेकिन इसमें जो सेंटेंस बने हैं आप देखिएगा कम प्रयोग होते हैं. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बिल्कुल यूजलेस है. आई मस्ट नॉट से दिस. अगर उसके ये ऐसे लगा दिया कि you are doing waste of your time, so the train will have left before you leave, before you reach the station. अगर इस तरह से आप टाइम वेस्ट करोगे तो ऐसे लगाएंगे तो शायद जमेगा, छूट जाएगी. सर एक्चुअली क्या हुआ था, हाँ भाभी, जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे थे ट्रेन हमारे सामने से, स्टेशन के सामने से निकल रही थी, मतलब जा रही थी. एक्चुअली ये सीन था कि हमने देखा हमारी आंखों के सामने ट्रेन चली गई. तो सर वो फिर क्या रहेगा? उसको हम ऐसे भी बना सकते हैं ना सेंटेंस को. जरूरी नहीं कि इस टेंस में बना है कि अपन ऐसे ही बना सकते हैं. एज वी रीच द स्टेशन वी सॉ द ट्रेन लीविंग. हाँ बीच सर ये तो इसी में हो गया ना कि भाई मतलब प्रेजेंट ये जो कौन सा टेंस हुआ था, एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट नहीं. अब पास्ट के साथ सर प्रेजेंट लग गया ना, मेरा वो कहना था. कहाँ लगा पास्ट के साथ? अपन फ्यूचर परफेक्ट पढ़ रहे हैं ना. ये फ्यूचर परफेक्ट है. यू कैन सी द हेडिंग फ्यूचर परफेक्ट. यस, उसके साथ आई सॉ के साथ आई सॉ द ट्रेन लीविंग. द सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल. ये जो घटना है अभी जो रेनू का सवाल है, इसको हम इस तरह से बोलते हैं बच्चों से कि बच्चों कई बार अनावश्यक रूप से हमारे आंखों पे ग्रामर का चश्मा लग जाता है, तो हम हर चीज को फिर उसके हिसाब से देखने लगते. तो अब हमें लगता है कि उस टेंस को सही करके हम वो वैसे हर बार वैसे नहीं बनेगा जैसे हमने बना दिया ना. एज वी रीच्ड द स्टेशन वी सॉ द ट्रेन लीविंग. जैसे ही हम लोग स्टेशन पे पहुंचे तो देखा ट्रेन तो जा रही है. इस भाव से भी बना देंगे. या फिर हम आमतौर पे ऐसा बोलते हैं, जल्दी करो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, हरी अप अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन. एक्चुअली हम बोल ऐसे देते, ऐसे बोलते हैं. दिस इज प्रैक्टिकल सेंटेंस. अरे कम ऑन हरी अप अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन. एक्चुअली हम मिस का यूज ज्यादा करते हैं, प्रैक्टिकल नहीं. या फिर हम पैसिव वॉइस में जाते हैं, जब सीख जाते हैं योर ट्रेन विल बी मिस्ड, हरी अप. तो अभी एक छोटी सी चीज लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज बाकी है, और वो है पैसिव वॉइस. बहुत सारे सवालों के जवाब आपको पैसिव वॉइस में जाके मिलेंगे. हम जैसा सोचने लगते हैं, लेकिन हाँ हम इस चीज को हमने फील किया है. ये जो आतुरता है ये होती है, ये बिल्कुल एक, और ये एक सुधी, जैसे सुधी श्रोता सुना है शब्द, वैसे ही एक सुधी स्टूडेंट जो होता है ये उसकी आतुरता होती है
सारिका के मन में जो प्रश्न आते हैं वो पूछती है रेणु को। ये अच्छा लगता है, इससे लगता है कि हाँ दिस इज एजुकेशन, दिस इज एजुकेशन। ऐसा नहीं कि वन वे चले जा रहे हैं, यस सर यस सर यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। दिस इज आई थिंक नॉट एजुकेशन। सवाल आने चाहिए। ओके सर, थैंक यू। वो दूसरे कई तरीके से बन जाएगा वो वाक्य जैसा मन में आ रहा है। वो पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट का मोहताज होगा नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में वो हम कई और तरीकों से बोल सकते, जैसे हमने बोल के बताया। हमने आपको जस्ट एज भी दिया, जस्ट एज वी रीच्ड द स्टेशन वी सॉ द ट्रेन इज गोइंग, द ट्रेन इज लीविंग। हम उस भाव में भी बोलते हैं। या ऐसे ही बोल सकते हैं, वी सॉ द ट्रेन लीविंग फ्रॉम आवर ओन आईज। ऐसे ही बोल देते हैं। हम उसमें टेंस में नहीं जाते हैं कई बार। एक्चुअली याद है हमने शुरू में बोला था पूनम एंड रेनू आर लिटिल लेट। हम शुरू में कई बार बोलते थे कि देयर आर ओनली 6 टेंसेस यूजफुल इन स्पोकन इंग्लिश। Yes, sir. This you told us. पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट। 6 टेंस कैन, कुड, शुड, बी चैप्टर और हैव टू थोड़ा सा। यू कैन स्पीक कंप्लीट इंग्लिश। आप सोच रहे होंगे सर आपने पैसे वाइज का नाम नहीं लिया। जानबूझ के नहीं लिया। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने पैसे वाइज नहीं अटेंड किया, बट दे आर स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। हाँ, मजेदार इंग्लिश बोलना है तो फिर पैसे वाइज, और बहुत मजेदार बोलना है तो पैटर्न वाइज। मतलब आज की डेट में यहाँ पे जितने लोग हैं, इवन निर्मला, नीरू, आज की डेट में अगर साउथ में चली जाए तो वो पूरी इंग्लिश बोल सकती है। शी कैन कम्युनिकेट विद एनीबडी वेदर शी यूज्ड टू मेक ए लॉट ऑफ मिस्टेक्स। क्योंकि साउथ में आप जाओगे तो कोई आपके सॉरी सॉरी कम अगेन सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ये थोड़ी कोई देखेगा। अगर आप वहां जाके ये बोल दोगे नो आई डिड नॉट वेंट देयर, तो आदमी समझेगा हाँ तुम जाने की बात कर रहे थे। वो सॉरी थोड़ी बोलेगा, अरे फर्स्ट फॉर्म लगाओ डेट के साथ। कोई नो बडी आस यस आई गो देयर, अर्लियर आई गो देयर, ऐसे बोल देते हैं, समझ जाता है व्यक्ति। जरूरी थोड़ी अर्लियर आई यूज्ड टू गो देयर, अर्लियर आई गो देयर। अरे यू विल बी सरप्राइज्ड, हमारे respected President Abdul Kalam Sahab, he was not good in English. You will be surprised to listen. Once I heard his. लेकिन जब आदमी का कद इतना हो जाता है ऊंचा कि फिर भाषा उसके सामने पिद्दी हो जाती है, मायने ही नहीं लगती। वो अब्दुल कलाम साहब हैं, अब उनकी इंग्लिश कैसी भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस यस यस, उनका कद ऊंचा उठ गया था। फिर यहाँ भाषा बौनी हो जाती, जैसे चाइनीज के लोग आते हैं यहाँ, या ऊट पटांग बोलते हैं, टूटी फूटी। यस यस, चलो बीच बीच में ऐसी थोड़ी और बातें होना चाहिए। नाउ शुड वी कंक्लूड? Yes, sir. Thank you, sir. अपन एक काम करेंगे, कल पूरा नॉनसेंस टॉकिंग सेशन रख लेंगे या सैटरडे को रख लेंगे ना। तो ऐसा करना, सैटरडे तक सारे क्वेश्चन जितने दिमाग में लिख के रखना है ना, तैयार कर लेना। AK-47. Okay. Thank you for joining.